شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ زرعی شعبے میں جموں کشمیر ملک بھر کے لیے مثل راہ کا کام کر رہا ہے، LG منوج سنہا۔ زرعی اصلاحات کی پالیسی کے بعد ہی جموں کشمیر میں لوگوں کی معاشی حالت میں استحکام آیا، سکینہ اتو۔ ایران اسرائیل لڑائی، ایران میں زیر تعلیم طلبہ کو وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، والدین کا حکومت سے مطالبہ۔ پاکستانی گولہ باری سے متاثر ہوئے پنچ کے لوگ ہنوز سرکاری امداد کے انتظار میں، کئی دیہات میں ابھی تک بنکر نہیں بنائے جانے سے وہاں کے لوگوں میں خوف۔ اور سیکرٹری انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کا آکاشوانی سری نگر اور دوردرشن کا دورہ۔ چند اور موضوعات پر بھی بات ہوگی، آپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، اسکواش کشمیر کی جانب سے آج کھڑونی کلگام میں CRCFC ریسرچ سینٹر فارمیشن میں ایک تقریب کا اہتمام رہا، جس میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا مہمان خصوصی کے طور شامل رہے۔ پروگرام میں محکمہ زراعت، کوآپریٹو اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار، وزیر صحت، تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ اتو، DDC چیئرپرسن کلگام محمد افضل پرے، IG کشمیر VK بدھوری، کمشنر زراعت VC اسکواش پروفیسر نذیر احمد گنائی سمیت دیگر افسران موجود تھے، اور اس تقریب میں کسان بھاری تعداد میں شامل رہے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زراعت میں جدید ٹیکنالوجی، معیاری بیجوں اور جدید زرعی آلات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کسانوں کی محنت اور لگن کی تعریف کی اور یقین دلایا کہ حکومت انہیں ہر ممکن تعاون دے گی۔ پیچھے میں نے انوروھ کیا تھا کلپتی جی سے، وائس چانسلر صاحب سے، کہ جو کسان بھائی ہیں ان کو پرمانت گنوتا والے بیج کی اپلبدھتا سنشچت کرانا چاہیے، اور اسی دشا میں مانتا ہوں کہ آج جو ابھی شالیمار سیڈ کمپنی کا شبھارمبھ ہوا، جسے ویکتیگت روپ سے میں جموں کشمیر کے لیے ایک ابھوتپورو اپلبدھی مانتا ہوں، اور وشیش روپ سے کسان بھائیوں کی ایک بہت بڑی سمسیا کا سمادھان کرنے میں ہمیں سفلتا ملے گی۔ آج میں اس بات کا بھی خلاصہ کرنا چاہوں گا کہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان، جیسا ڈاکٹر گنائی نے کہا، جموں کشمیر کے لیے کوئی نیا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ پچھلے 11 برسوں میں کسان اور کھیتی کو لے کر کے مہا ابھیان پورے دیش میں چلا، لیکن جموں کشمیر کا جہاں تک سوال ہے، سچائی یہ ہے کہ جموں کشمیر، چاہے وہ اسٹیٹس ہوں چاہے UT ہوں، دونوں شرینی میں اس ابھیان کی شروعات کرنے والا پہلا UT رہا ہے جموں کشمیر۔ 3 برس پہلے ہو ایک کارکرم جموں کشمیر میں پرارمبھ کیا گیا تھا، اور مجھے پرسنتا ہے کہ آج پورے دیش میں جموں کشمیر کے اس ماڈل کی چرچا ہو رہی ہے، اور کئی لوگ تو اسے اپنا بھی رہے ہیں۔ ہمارے محنت کش کسان بھائی بخوبی جانتے ہیں، 2022 میں دیش کے جانے مانے ایگریکلچرل سائنٹسٹ کی ٹیم، ہمارے دونوں وائس چانسلرز، ایگریکلچر اور لائن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سبھی ادھیکاری، انہوں نے مل کر کے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان بہت سوچ سمجھ کر پورے جموں کشمیر میں کسان جن سمپرک ابھیان ہم نے پرارمبھ کیا۔ 29 پروجیکٹ ڈیفائن کیے گئے، اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پروجیکٹ بنائے گئے وہ کوئی سائلوز میں نہیں ہے، ہر پروجیکٹ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ جموں کشمیر کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے واٹر ڈیفیسٹ ہمارے پاس ہے، آئل سیڈز کی کمی ہے، میٹ باہر سے ہم منگاتے ہیں، فشریز میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ملک ڈیفیسٹ ہوا کرتی تھی، اب ہم ملک ڈیفیسٹ اسٹیٹ نہیں رہے۔ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے HADP کا نرمان ہمارے ویجانکوں نے کیا۔ ٹلو صاحب جو آج چیف سیکرٹری ہیں، اس سمے ایگریکلچر کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور میں اس پوری ٹیم کے سبھی سدسیوں کو بہت بدھائی دیتا ہوں، جنہوں نے ایک بہت ہی مہتوپورن بھومکا اس میں نبھائی۔ یہ تھے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم و صحت سکینہ اتو نے ضلع کلگام کے کسانوں کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر شیخ محمد عبداللہ نے زمینوں کی ملکیت عوام کو نہ دی ہوتی تو آج یہ ممکن نہیں تھا کہ کسان اپنی زمین پر ارک ریزی کر کے اپنا اور دوسروں کا پیٹ پالنے کے اہل ہو جائیں۔ انہوں نے گورنر کو موسمی نقصانات اور ضلع کے دیگر معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج جو جموں کشمیر میں وزیر اعظم صاحب نے جب یہاں پہ الیکشن کا اعلان کیا، اور آپ سب لوگوں نے اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ایک ہسٹوریکل فیصلہ کیا، آپ نے اپنے نمائندے چن کے، تاکہ آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی جو مشکل ہیں ان مشکلوں کو حل کر سکے۔ آج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے جو یہاں پہ یہ پروگرام رکھا ہے، میں اس چیز کو بھی نہیں بھولوں گی کہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اگر راتوں رات
जमीनों का मालिक नहीं बनाया होता, आज शायद इस मुकाम पे हम खड़े नहीं होते। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें शेर कश्मीर के उस कंट्रीब्यूशन को भी याद करना चाहिए और उनको भी खराज अकीदत करना चाहिए। जिस जमीन पे आज हम फसल उगाते हैं, जिस जमीन पे आज हम मुख्तलिफ तजुर्बे करते हैं, उस जमीन का हकदार अगर किसी ने हमें बनाया है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, जनाब कुलगाम डिस्ट्रिक्ट उसमें पेश है। और आज अगर चावल की पैदावार की बात करें, 50% जो चावल पैदावार है वो इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, पुलवामा एंड शुपियान में होता है। मैं यहाँ के किसान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूंगी। और इसी तरह हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत सेब, सबसे ज्यादा मजेदार सेब अगर कहीं होता है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में होता है सर। लेकिन मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से यही कहूंगी, किसानों को बहुत मुश्किलें भी हैं, ये कोई आसान चीज नहीं है। जो क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पे आई हुई है उस पे हमारे साइंटिस्ट्स को काम करने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ ये जो इदारा जहाँ हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मकसद ही यही है, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपके साइंटिस्ट्स हैं, इनको इस टॉपिक पे काम करना चाहिए ताकि जमींदार को जो मौसमी हालात की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे उसकी मदद किस तरह हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हमारे मजदूर भाई जो फसल उगाते हैं और जब अचानक मौसम की वजह से उनको नुकसान हो जाता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। वज़ीर तालीम सैयद कुलगाम में जानकारी कैंप में हुई शामिल हाजरीन से किया खिताब। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों की जान बचाते हुए अज़जां हुए सईद आदिल हुसैन के घर जाकर उनके लवाकिन के साथ बातचीत की और सईद आबिद की कुर्बानी को याद किया और उन्हें हुकूमत की तरफ से तमाम जरूरी मदद का यकीन दिलाया। एलजी के हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी थे। एलजी ने सईद आबिद की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अब एक और मौजू। समीन मरकजी सेक्रेटरी इतलात और नशरियात संजय जाऊ ने आज दूरदर्शन श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर का दौरा करके यहाँ अफसरान और प्रोग्राम अमले के साथ अलग अलग मीटिंगें की, जिस दौरान दोनों इदारों के कामकाज का जायजा लिया गया और साथ ही प्रोग्रामों और खबरों के शोबे में जदीदत लाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में जॉइंट डायरेक्टर न्यूज तारिक अहमद, प्रोग्राम सर्वर आकाशवाणी श्रीनगर गुलाम रसूल आखून, प्रोग्राम ऑफिसर सतीश विमल, न्यूज एडिटर इशफाक अहमद, वसीम फारूक और दीगर अफसरान मौजूद रहे। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, इसराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों में जहां जानो माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहीं ईरान की तरफ से भी गुज़श्ता रोज इसराइल के मुख्तलिफ ठिकानों पर जोरदार हमले हुए हैं, जिस दौरान भी जानो माल के नुकसान की खबरें हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंगी सूरत-ए-हाल के बायस वहां पर जेर तालीम बच्चों और उनके वालिदैन की तरफ से हुकूमत हिंद से मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान में जेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा को घर वापस लाने के लिए फौरी तौर इक़दाम किए जाएं। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले में वजीर खारजा से जरूरी इक़दाम का मुतालबा किया है ताकि ईरान में मौजूद तलबा की वापसी के लिए राहें हमवार हो सके। इधर कई दीगर तंजीमों और अंजुमनों ने भी इस मामले में मरकजी सरकार की मुदाखलत तलब की है। इस दौरान इसराइल में भारतीय सफारतखाने ने हिंदुस्तानी शहरियों से पेचीदा हालात के बायस इंतहाई एहतियात से काम लेने, मकामी हुक्काम की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने, गैर जरूरी सफर तर्क करने और साथ ही हिफाजती बंकरों के आसपास ही कायम करने का मशवरा दिया है। सफारतखाने की तरफ से जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी फोन लाइन नंबरात भी जारी किए गए हैं। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है क्योंकि यहाँ दो सरकारों के कंट्रोल के बायस आम लोग पिस रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि एलजी और वजीर आला मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि बुनियादी मसाइल जैसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को राहत देने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और इस वक्त आम लोग पिस रहे हैं। मत्सल से मकामी लोगों की तरफ से शहरबीन को बताया गया है कि इस पसमानदा और सरहदी इलाके में कायम हायर सेकेंडरी स्कूल में अमले की बड़े पैमाने पर कमी है, जिस वजह से वहाँ दर्स और तदरीस का अमल मुतासिर है। शहरबीन को बताया गया कि वहाँ लेक्चररों की 11 और मास्टर्स की 4 असामियां खाली होने से बच्चों की तालीम और तरबियत मुतासिर है और बच्चे स्कूल सिर्फ
वक्त गुजारने के लिए ही जा रहे हैं। सीओ कुपवाड़ा को इस मुतल्लिक कई बार याददाश्त दी गई मगर बेसूद। मकामी लोगों ने वजीर तालीम से मामले में जरूरी मुदाखलत तलब की है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब हर घर रोशन होगा। आज ही अप्लाई करें और इस योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं। इन सोलर पैनल से इतनी बिजली बनती है कि एक तो गर्मियों के महीनों में इस्तेमाल होती है और उसके बाद भी इतने यूनिट्स बच जाते हैं कि सर्दियों में जो ये पैनल्स कम यूनिट्स पैदा करती है उनसे भी आपके बिल पे कोई असर नहीं पड़ता। गर्मियाँ हो या सर्दी, अब बिजली के बिल से भी छुटकारा और अनदेखी आफतों में अंधेरों में भी उजाला। मजीद जानकारी के लिए नजदीकी KPTCL ऑफिस से राब्ता करें या www.pmsuryaghar.gov.in पर अप्लाई करें। Issued in public interest by Kashmir Power Distribution Corporation Limited। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन 8 और 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में बड़ी पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान करनाउड़ी और पूंछ के सरहदी देहात के लोगों को उठाना पड़ा, जहां सैकड़ों घर जुज़वी से मुकम्मल तौर तबाह हुए, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग भी अज़जा हुए। हुकूमती सतह पर मुतासरीन को इमदाद देने, बाज़ाबादकारी और मुआवजा फराहम करने के ताल्लुक से बार बार ऐलानात किए गए हैं, मगर जमीनी सतह के हालात हुकूमत के इन दावों की नफी कर रहे हैं। पुंछ से KD मिनी की रिपोर्ट। माह मई में LOC पर गोलाबारी के बायस पैदा होने वाले नामुसाइद हालात के दौरान पुंछ में न सिर्फ जानी और माली नुकसानात हुए बल्कि अवामी जिंदगी तहबाला होकर रह गई थी। सैकड़ों घर या तो कुल्ली तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर मुनहदम हुए। लोगों को घर छोड़कर महफूज पनाहगाहों की तरफ रुख करना पड़ा, जिसके बायस रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा और लोग इक्तिसादी तौर पर जबरदस्त बहरान का शिकार रहे। इस तरह पुंछ शहर के नजदीक वाक़या गांव अजोट, बुग्यालदरा, खड़ी, गुलपुर, शाहपुर, कीरनी, मंतहार, मंडी में सब्जियां, खेत, गगड़ियां, उड़ीपुरा, जलास और मेंढर में बनकोट, दबराज, गानी, बल्लोई जैसे गांव शामिल हैं, जहां घरों पर गोले पड़े, फसलें तबाह हुई, मवेशी तलब हुए और लोगों को जान गंवानी पड़ी। अगरचे अब सरहदों पर खामोशी है, लेकिन नामुसाइद हालात अपने पीछे बहुत सी मजबूरियां और महरूमियां छोड़ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रियासती और मरकजी हुकूमत की तरफ से बर वक्त राहती काम शुरू हो चुके हैं, जिसके तहत जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को की माली मावनत की जा चुकी है और घर के एक फर्द को नौकरी के अहकामात भी मिल चुके हैं। लेकिन जो मकान कुल्ली और जुज़वी तौर पर तबाह हुए, फसलें उजड़ी या फिर मवेशी तल्फ हुए, उनके कागजात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और कुल्ली तौर पर मुनहदिम होने वाले मकानों के लिए 1,20,000 रुपये और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकानों के लिए 6,500 रुपये देने का अमल जारी है। लेकिन इस रकम से मुतासरीन खुश नहीं हैं। इस सिलसिला में हाल ही में जब वज़ीर दाखिला अमित शाह पुंछ आए तो उन्होंने इस मुतालबे को मानते हुए स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। उधर सरहद पर मौजूदा हालात के पेश नज़र वज़ीर दाखिला से मांग की गई थी कि गोलों की जद में आने वाले इलाकों में मजीद बंकर बनाकर दिए जाएं और वज़ीर दाखिला ने इस मांग को भी मान लिया था। मुतासरा इलाकों में अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि जहां मकानों की तहमीर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, मखसूस इलाकों में बंकर बनाकर दिए जाएं, वहीं मुतासरा गाँव में रोजगार के वसाइल बढ़ाए जाएं और तरक्याती अमल में सुरत लाई जाए ताकि अवामी जिंदगी फिर से मामूल पर आ सके। आपने पुंछ से KD मिनी की रिपोर्ट सुनी। सामीन, खून के अतीक के आलमी दिन के मौके पर आज मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम रहा।
सबसे बड़ी तकरीब आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में मुनक्कद हुई, जहां एक ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्कद हुआ, जिसमें 32 अफराद ने रजाकाराना तौर खून का अतिया दिया। इस मौके पर महकमा ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर रोमानिया मखदूमी ने खून देने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एक अखलाकी फरीजा है और इससे कई जानें बचाई जा सकती हैं। अब एक और मौजू, जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम रहा, जिस दौरान पेंशनर्स, इन सर्विस मुलाजमीन के साथ साथ आरजी मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कयूम वानी ने 8वीं तनख्वाह कमीशन से पेंशनर्स को बाहर रखने के इरादे की खुलकर मुखालफत की और कहा कि मुल्क भर में 23 जून को जिला सतह पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को एक याददाश्त दी जाएगी जो वज़ीर-ए-आज़म के नाम होगी और इसमें इस फैसले की खुलकर मुखालफत की जाएगी। अब्दुल कयूम वानी ने मेडिकल अलाउंस और दीगर मामला भी उजागर किए और मरकज़ जम्मू कश्मीर सरकार से ताकीद की कि पेंशनर्स और मुलाजिम कुछ पॉलिसी को फौरी तौर तर्क किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया, उसका बुनियादी मकसद है कि मरकजी सरकार ने एक पार्लियामेंट में एक फाइनेंस बिल पास की है और मरकजी सरकार ये करना चाहती है और उसको करोड़ों पेंशन और उसको एक्सक्लूड करना चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो है 1982 की, उसमें एक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा है कि जब भी कोई पे कमीशन हो जाए उसका बेनिफिट एम्प्लॉइज के साथ साथ, इन सर्विस एम्प्लॉइज के साथ साथ द सेम बेनिफिट शुड गो टू द पेंशनर्स ऑफ कंट्री। तो अब मीडिया में रिलायबल सोर्सेज से भी पता चला है कि सरकार की नीयत इसमें ठीक नहीं लगती है। तो उस हवाले से ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की हमारी मीटिंग, उनकी मीटिंग दिल्ली में हुई, मैं भी उस मीटिंग में था। एक फैसला हुआ, हम दोनों फ्रंट्स पे इसको लड़ेंगे, कानूनी सतह पर भी लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक वेज और मीनत इस्तेमाल करके हम उस हवाले से भी इस पर एहतजाज करेंगे। और 23 तारीख को फैसला हुआ है कि 23 तारीख को मुल्क के तमाम अजला से हमारे तंजीम के जिली सदूर साहिबान थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स एक मेमोरेंडम और एहतजाज सबमिट करेंगे। वो मेमोरेंडम और एहतजाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगा, क्योंकि हम एफिलेटेड है ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के साथ। हमने फैसला किया है कि हमारे 22 अजला में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अजला में, हमारे पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले हर एक जिले में एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर के नाम इरसाल किया जाएगा। और दूसरा मसला जो हमारी रियासती सतह पर हमारे मामलात हैं, हमारी रियासती सरकार टोटली इग्नोरेंट और नॉन सीरियस है यहाँ के पेंशनर्स, पर्टिकुलरली पेंशनर्स के मसाइल के हवाले से और इन सर्विस एम्प्लॉइज के हवाले से। हमारे लोग जो पेंशन हमारे मुलाजमिन यहाँ होते हैं, न उनको जीपी फंड मिलता है, न ग्रेजुएटी मिलती है टाइम पर, न उनकी लीव सैलरी मिलती है। और अलमिया ये है, कम्यूटेशन लीव उनके हक में सैंक्शन की जाती है और उनके अकाउंट में उसको भेजा नहीं जाता है, और उल्टा उनके फैमिली पेंशन से लोन तो मिला नहीं लेकिन किस्त तो काटते हैं जनवरी से। और तीसरा जो हमारा मामला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक पेंशनर को, जब वो पेंशनर 80 एज क्रॉस करता है, उसको 20% एनएनएस पे हो जाता है। और हमारा मानना है अगर सरकार का ये वेलफेयर स्टेप है तो ये वेलफेयर स्टेप जिंदू को मिलना चाहिए। 80 की एज तक कोई 5% लोग भी नहीं पहुंचते हैं। अगर ये वेलफेयर बेनिफिट आप देना चाहते हैं तो आपको 60 साल के बाद, हर 5 साल के बाद एक 5% उसको मिलना चाहिए। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा हमारा था, मेडिकल अलाउंस मरकजी सरकार, क्योंकि हम यूटी में मरकजी सरकार के अंडर काम करते हैं, हर एक मुलाजिम को 1000 पर मंथ मिलता है, चाहे पेंशन हो इन सर्विस हो। लेकिन लद्दाख यूटी ने भी डिसीजन किया है हमारे बाद, उन्होंने भी 1000 कर दिया है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की यूटी है, इसमें हमने वजीर आला तक भी ये बात पहुंचा, ऑनरेबल गवर्नर साहब तक भी ये बात पहुंचा है, लेकिन कमिटमेंट के बावजूद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट भी किया था, जो ही इक़्तिदार मैं आऊंगा पहले डेली वेजर्स और ये मेडिकल अलाउंस को मुलाजमिन को मैं बंटी दे दूंगा। लेकिन वो भी आज तक नहीं हो। फाइल इज गेटिंग डेस्ट एट सेक्रेट। कहां से कहना चाहता हूं, जब सरकारी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जब उनको आप, मैंने उनके पर्कस के तो हम खिलाफ नहीं है, उनकी गाड़ी चाहे उन्होंने ले ली, उनको सीडीएफ फंड में इजाफा चाहिए उन्होंने लिया, उनके तनख्वाह में इजाफा चाहिए उन्होंने लिया। एक दिन एमएलए जब बनता है तो उसको मिलता है, तो उम्र भर पेंशन मिलता है, 4 पेंशन लेते हैं। लेकिन जो हमारे एनपीएस में जो हमारे मुलाजिम लगे हैं 2014 से, वो सड़कों पर बेचारे दर की ठोकरें खाते, एहतजाज करते हैं, उनको एनपीएस में नहीं लाया जा रहा है। और कैजुअल लेबरर्स और जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉय है,
सरकार को चाहिए उनकी जॉब सिक्योरिटी लगाए, उन पर मिनिमम वेजेस एक्ट का इतलाक करे और उनको रेगुलराइज करे। सरकार ने अब 6 महीने का टाइम मांगा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये इल्तिमास करता हूँ उस प्रोसेस को स्पीड अप करके इस मामले को वंस फॉर ऑल हल किया जाए, क्योंकि हमारे कैजुअल लेबर्स ड्यूटी के दौरान मर भी जाते हैं, उनको कोई पैसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, SRO 43 में नहीं मिलता है। हम नौकरी से रिटायर हुए हैं, जुदोजहद से रिटायर नहीं हुए। मैं मुलाजमीन से भी जो भी हमारे एक्टिव सर्विस में मुलाजिम लीडराना मेरे बच्चे उनसे मैं कहता हूं पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट आपके मामलात में भी आपके साथ शान बशाना काम करेगी। हम किसी को नाइंसाफी होने नहीं देंगे और नाइंसाफी के खिलाफ जमकर सीना ठोक के हम लड़ने के लिए तैयार है। और सरकार को चाहे फौरी तौर हमारे मामलात के हवाले से सीरियस हो जाए, वरना उनमें सीरियसनेस लाने के लिए हमारे पास और सारे तरीके। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कठवा से रमेश मराठा ने खबर दी कि डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने लखनपुर इलाके का दौरा किया ताकि आइंदा दिनों शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया जा सके। अपने दौरे के दौरान उन्होंने उन सहूलियात और इंतजाम का मुआयना किया जो यात्रियों की आसाइश और बहिफाजत नकल हमल के लिए हाथ में लिए गए हैं। इस मौके पर सिविल इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने सफाई, सिक्योरिटी, रिहाइश और तिबी सहूलियात के हवाले से डिवीजनल कमिश्नर को तफसीली जानकारी दी। रमेश कुमार ने तमाम महकमों के दरमियान करीबी ताउन पर जोर दिया ताकि यात्रियों को एक महफूज, आरामदेह और बिला रुकावट यात्रा का तजुर्बा दिया जाए। अब एक और मौजू। हुकूमत आवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से बखूबी वाकिफ है और तमाम हुकूमती मशीनरी लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का इजाला करने में लगी हुई है। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी से वाबस्ता लीडरान, अहदेदारों और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल करते हुए किया। मुलाकात होने वालों ने उमर अब्दुल्ला को अपने मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम जायज मुतालबात को तरजीह बुनियाद पर हल कराया जाएगा। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, ट्रेजरर शमी ओबराय, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, सियासी सलाहकार मुदस्सिर शाह मीरी समेत कई MLA और अहदेदारान भी मौसूफ से मुलाकात हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज शेषगिरी मोहल्ला खानियार में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुहर्रम उल हराम और रोजे आशुरा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। इस दौरान अली मोहम्मद सागर ने जोर दिया कि वो आवाम को बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराएं और साथ ही शिया अक्सरियती वाले इलाकों में सड़कों और गली कूचों की सफाई की तरफ तवज्जो दी जाए और मुहर्रम के दौरान बिला खलल बिजली और पानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अज़ादारों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप मुनक्कद करने पर भी जोर दिया। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी कि बस स्टैंड त्राल में 6 साल कबल इंतजामिया ने बस स्टैंड की कुशादगी को लेकर एक बड़े फैसले के तहत 50 से ज्यादा दुकानों को मुनज़्ज़म किया, जिस दौरान मुतासर दुकानदारों को यकीन दिलाया गया कि जल्दी उन्हें नई दुकानें दी जाएंगी। लेकिन 6 वर्ष गुजर जाने के बावजूद इन दुकानदारों को बाज़ाबादकारी का इंतजार है। मुतासर दुकानदार इन 6 वर्षों में मुतअद्दिद बार सियासी लीडरान और अफसरान से मिले, लेकिन वादे अभी तक वफा न हो सके। मेरा बिलाल अहमद डार त्राल पे रोजान कर एडमिनिस्ट्रेशन ADC त्रालन तुले 2019 मज 53 दुकान तुलिक थोद मिसमार कोरुक कि दोपुक ट्रैफिक खलल गसन ट्रैफिकस गसे कुशायदी गसन कि अस कोरुक वाद तम साथ दोपुक तुह हसा दिमो नई दुकान बनत 2019 पे सियासतदान अफसर आई तिम सन मुताला बोजान मगर हल कर खुदायस बगैर कहीं गवर्नमेंटस एडमिनिस्ट्रेशनस कर गुजारिश कि अगर 6 वरी 7 वरी गई सड़कन पे बिहत रुदस मज गटकारस मज गर्म तूफानस मज वुमर बिहन सड़कन पे योत मेहरबानी कर एडमिनिस्ट्रेशनस DC सोबन कमिश्नर सोबन कर इल्तिजा चीफ सेक्रेटरी कर इल्तिजा होम डिपार्टमेंटस कर इल्तिजा मेहरबानी कर अगर 2019 पे 53 दुकानदार मुतासर कर तुलिक दुकान थोद दिख तन पे सियासतदान अफसरों दित दुकान सन मुतालब यी कि एडमिनिस्ट्रेशन बे अकि गुजारिश कर गुल गंडित मेहरबानी कर अगर 53 दुकान 2019 मज तुलन ADC त्रालन तुल तम सात रैना सोबन तुल दुकान 53 दुकान तुल तम दोपन बह दिमो तुम नो शॉपिंग कम्प्लेक्स बन हार्टिकल्चर लैंड अगर अथ शॉपिंग कम्प्लेक्स बनान वुमर बिहन सड़कन पे बेहमा यमन दुकान मज। बस स्टैंड त्राल से हटाए गए दुकानदारों का सरकार से वादा खिलाफी का इल्जाम। MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल
खान साहब प्राइमरी हेल्थ सेंटर नोनर पारनुआ और ग्रेवेट का दौरा किया। इस मौके पर एसडीएम खान साहब और सीएमओ बड़गाम भी उनके साथ थे। दौरे के दौरान एमएलए मसूम ने एसडीएच खान साहब के लिए लेप्रोस्कोप मशीन और डेंटल चेयर के लिए रुकूमत वगजर की, ताकि इलाके के लोग खासतौर पसमानदा तबके के लोगों को सहूलियत मिल सके। सैफुद्दीन भट्ट ने इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को यकीन दिलाया कि आने वाले वर्षों के दौरान महकमा सेहत में बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और खान साहब जैसे दूर दराज और पसमानदा इलाके में जदीद तिब्बी सहूलियात दस्तियाब कराई जाएंगी। सुनी दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही त्राल में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसके खिलाफ आज मेन टाउन त्राल के कौसरबल और नायक मौला की खवातीन ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन ने त्राल नवतला सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी, जिसके बाद मुसाफिरों को काफी वक्त तक परेशानी का सामना रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि कई दिनों से इलाके में पीने के पानी की सप्लाई बंद है, लेकिन जल शक्ति महकमा कोई कदम नहीं उठा रहा है। बेमार इन्फेक्शन गो कम गस प्रति चारवाई की त्रेश कहें बचन स्कूल मज कड़ नबर तक वर्दी गमज खराब ये आब अस कत छलो यह वर्दी यह सोन बान मकूल खेन पान छटने बानन मज पत इथे पे करो थोड़ा ग्राय वनकन इन्फेक्शन वक्त अपील कर अफसरन वातन ओतन कर अमुक तहकीकात अस तहन साफ आब। मेहरबानी तो मेहरबानी। कौसरबल और नायक मोहल्ला त्राल की खवातीन का पानी को लेकर एहतजाज। सामीन जनूबी कश्मीर के कस्बा बिजबियाड़ा में आज वली कामिल हजरत बाबा नसीरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह शरीफ पर सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने हाजिरी दी और फातिहा खानी और दुरूद व अज़कार की मजालिस में शमूलियत की। सामीन वादी कश्मीर में आज मौसम में कदरे बेहतरी देखी गई। श्रीनगर में दर्जा हरारत 30.3, काजीगुंड में 29.3, कुलगाम में 28.8, कुपवाड़ा में 28.3, गुलमर्ग 20.5, जबकि पहलगाम में 25.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जम्मू शहर में 41 डिग्री, बानिहाल 32, बटोत 30.6, भद्रवाह 31.6, कठवा में 38.4 डिग्री, जबकि लेह में 26.0 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है। इस तारीख ने खबर दी कि अनंतनाग जिले के बटिंगो इलाके में आज एक शख्स दरियाए जहलम में फिसल कर जाँ बहक हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा शख्स दरिया पर वुज़ू कर रहा था कि उसका पांव फिसल गया और इस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हुई। महलूक की शिनाख्त फारूक अहमद डार वलद अब्दुल गनी डार साकना शोल बटेंगू के तौर हुई है, जो महकमा आपाशी के मैकेनिकल डिवीजन अवंतीपुरा में आरजी मुलाजिम के तौर काम कर रहा था। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समिति